आपने अपने शब्दों से हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से अभिभूत कर दिया है। मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जी कि कृपया वो मंच पर आए और अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दें। थैंक यू मैडम। Respected Dean Faculty of Science, Dr. Trupta Trivedi Madam, Chairperson of this Science Festival Organizing Committee, Dr. Vibhuti Rao ji, Honorable Professor Shukla, who happens to be our colleague from Faculty of Education and a former Vice Chancellor of the Budelkhand University, Head of Department of Statistics, Department of Biochemistry, Department of Geology, our esteemed guest, Professor Bhatt, my colleagues from the university, I can see our Controller of Examination, Professor Saxena, our Dean, Faculty of Law. I can take this off probably. Yeah. Our Chief Proctor, our Superintendent of Works, and I can see many faces. Our Chief Provost is here, and all the respective head of departments. I can see Professor Poonam Sharma, Head Department of Mathematics, our Dean Research, Professor Manisha. Now, this is a science festival, and this has begun after 100 years. This is what Professor Rai just informed. Now, can you think of what the reason was? Right across the road, at the back of the road, there is a Department of Political Science, which was the first ever department of political science in the country. Somehow, political science dominated physical science in this great institution. And probably it is because of this that the strength of Faculty of Science could not outshine, and finally this science saw the light of the day, and we are here celebrating Science Festival. Science Festival in a centenary year celebration. What a better opportunity could it have been? So I welcome all present in the Science Festival organized by University of Lucknow as part of its centenary celebration. I also understand that this is a festival, so in a festival people are not ready to listen to such a long academic deliberation. और इस बात का आप सब इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से कि ये महोत्सव है, तो महोत्सव में गंभीर एकेडमिक डिस्कशन पर लोग शायद उतनी तवज्जो ना दें, तो मैं भी इसको बहुत भारी नहीं बनाना चाहता हूँ, but then when can someone fix the sound, please? When I first interacted Professor Vibhuti Rai ji with respect to some kind of science initiative in this centennial celebration, he came up with this proposal. And this was a wonderful proposal, which was received well by all the people who were part of organizing this centennial celebration. And we instantly thought of giving it a show as grand as possible, given the resource constraint that we operate in. So, आज वो शुभ दिन है और मेरी ये भी आकांक्षा है कि अभी I was watching some of these stalls. ज़्यादातर स्टॉल थोड़ा स्टैटिक इन नेचर मुझे दिखते हैं, तो स्टैटिक को डायनामिक कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये 5 दिन का फेस्टिवल है, हमको स्टूडेंट्स को इंगेज थोड़ा करना पड़ेगा और वो इंगेजमेंट के लिए उसका डायनामिज्म बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी इस पूरी व्यवस्था में कि इतनी दूरी है, 2 अलग अलग छोर पे स्टॉल्स हैं, इसलिए कोई कियोस्क की स्थिति नहीं है, पर्याप्त रोशनी है, पर्याप्त हवा है, एंड इट इज़ सो इम्परेटिव बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक इशू। ये भी सही है कि इस विश्वविद्यालय के साइंस के अचीवमेंट्स
बहुत बहुत शानदार हैं। समाज, जैसे मैंने कहा कि वो सोशल साइंस के अचीवमेंट्स के बादलों में छुपे हुए रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का साइंस का अचीवमेंट समाज तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे, और इस ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग के साइंस फैकल्टी के डिपार्टमेंट्स को उसका ड्यू पाए प्राप्त हो। यहाँ पे जब भी बात होती है लेजेंडरीज की, तो हम लोग ज़्यादा बातें करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पॉलिटिकल पावर अचीव किया, पॉलिटिकल पोजीशन अचीव की। आप सब अपनी आम चर्चा में इसी तरह की बातें करेंगे, लेकिन इस संस्था का साइंस का अचीवमेंट समहाउ थोड़ा मुझे लगता है कमतर रहा। जबकि मेरे पास कुछ सूची है, यहाँ पे प्रोफेसर बीरबल साहनी FRS, इनका नाम तो हम सब जानते हैं, वॉज अ लेजेंडरी इन द फील्ड ऑफ पैलियोबॉटनी। आपके नाम से ही बगल में एक संस्था है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, जो देश में अपनी तरह का अकेला इंस्टीट्यूशन है। प्रोफेसर PS मैकमोहन FNI फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, प्रोफेसर J. Strang, लेजेंडरी मैथमेटिशियन, प्रोफेसर EN सिंह, जो हिंदू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के पूरी दुनिया में जाना माना नाम रहे, डॉक्टर DB देवधर एंड प्रोफेसर वली मोहम्मद, GS थापर, KN बहल, they were belonging to Department of Zoology and many more. प्रोफेसर बीरबल साहनी साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी को इस्टेब्लिश किया, एंड प्रोफेसर KS कृष्णन इनिशिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री अलॉन्ग विद डॉक्टर सोमा कुमार, प्रोफेसर BP अधिकारी एंड प्रोफेसर VS हुजूर बाजार lead the foundation of Department of Statistics. अलुमिनस भी यहाँ के साइंस के बहुत लीडिंग हैं। जैसा प्रोफेसर राय बता रहे थे कि कई सारे लीडिंग सेंट्रली फंडेड नेशनल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स इस समय हमारे अलुमना हैं। ये भी अपने आप में बहुत बहुत प्रतिष्ठा का विषय है, लेकिन ये ज़्यादा ओनस लाई करता है यहाँ के साइंस के बच्चों के लिए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मेरा अनुरोध होगा कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ के साइंस के अकम्पलिशमेंट से वाबस्ता करा पाएँ, जितना ज़्यादा उनका इंगेजमेंट करा पाएंगे, वो उतना ही अच्छा विश्वविद्यालय के लिए होगा और उनकी साइंस की लर्निंग ऑफ कोर्स स्ट्रेंथन होगी। और स्टोर के बहुत सारे स्कूलों के और कॉलेजेस के बच्चे भी आ रहे हैं और वो आके यहाँ साइंस से रूबरू होंगे। साइंस की जो बहुत सारे हम जैसे लोग, मैं पहले BSc मैंने किया ग्रेजुएशन लेवल पे, MSc फिजिक्स में एडमिशन भी लिया, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहाँ सेशन इतना लेट था व्हेन आई टुक माय एडमिशन इन MBA एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो एक कॉपी जो मैंने फिजिक्स MSc फिजिक्स के लिए करी थी, उसमें शायद 8-10 पेज में कुछ लिखा होगा। उसी कॉपी को मैंने शुरू किया जब मैं मैनेजमेंट में जाने लगा, तो उसमें कुछ लिखा। तो जब मैं पीछे पलट के देखा, मुझे लगा मैनेजमेंट इस MSc फिजिक्स के सामने एकदम बच्चा है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। और फिजिक्स की थियरम्स और प्रिंसिपल्स, मतलब ये लगता था कि भगवान हम कहाँ फंसे थे। और दिस MBA वाज लाइक अ केक वॉक एंड आई स्कोर्ड वेरी हाई। और जितना हम MSc सिंस आई हैव ओनली ज्वाइन, तो जितनी पढ़ाई करते थे, या इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन एक्सेल्फ वाज एक्सट्रीमली टफ एट इट्स ओन टाइम, तो उसके सामने लगता था कि उसका 50% पढ़ाई करेंगे तो हम MBA में टॉप कर जाएंगे। और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और फिर उसकी आधी पढ़ाई करके मैं मैनेजमेंट की फील्ड में अपना अच्छा खासा हिंदुस्तान में नाम और रसूख बना लिया। तो ये साइंस जो कि मुझे लगता है खासा तकलीफदेह होता है पढ़ाई के समय, खासा तकलीफदेह होता है, उसमें पढ़ना भी पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं, और साइंस के टीचर्स थोड़ा कड़क भी होते हैं। तो उन सारे दुश्वारियों के बीच में अपने लिए एक जगह बना पाना, वो आप जब यहाँ के टीचर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाउ डिजर्विंग दे आर एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे डिमांड फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम द सिस्टम एज वेल। यहाँ का रिसर्च इंडेक्स H इंडेक्स हमारा स्कोपस का 85 है,
मोनिशा मैडम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अर्लियर इट वाज 83, फिर वो लॉकडाउन पीरियड में 2 पॉइंट और बढ़ गया, सो इट वाज 85। वेब ऑफ साइंस का हमारा एच इंडेक्स 79 है। और आप इसको अगर सेग्रीगेट करेंगे डिसिप्लिन वाइज तो देयर इज हार्डली एनी मैच। ये और विशेष इट डिजर्व्स ग्रेटर कुडोज इसलिए भी कि मैं जिस संस्था से आता हूँ वहाँ की तुलना में मैं यहाँ के टीचर्स, यहाँ के डिपार्टमेंट्स और यहाँ के फैकल्टीज़ के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंपेयर करता हूँ तो हम बहुत ज़्यादा डिप्राइव कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट्स को। मुझे लगता है जिस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, इट सो हैपेंड वंस आई विजिटेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी और वहाँ मुझे एक लैब दिखाई गई। आई बिलीव डॉक्टर शाली मलिक वुड बी हियर। मैंने इनकी लैब देखी और एवरी सिंगल, अगर मैं कहूँ एवरी सिंगल सेंटीमीटर ऑफ द लैब वाज आल्सो यूज्ड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरिंग द रिसर्च। वो देख के लगता है उसमें बच्चे बैठे थे और बच्चे अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में कनेक्शन इंटरनेट का करे हुए। वाइल इफ यू सी द काउंटर पार्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हाई स्पीड वाईफाई है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जगह है, बहुत एडवांस लैब है, उसके कंपैरिजन में हमारे इंस्टीट्यूशंस हाईली फैसिलिटी डिप्राइव है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है इसके बगल में ही जहाँ हम लोग खड़े हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 36 की फैकल्टी स्ट्रेंथ है और 14 लोग अभी काम कर रहे हैं, 2 लोग अभी सुपर एनुएट भी हो चुके हैं। एक सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये कैसे पढ़ाया जाएगा, जबकि अंडर ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, डॉक्टरल रिसर्च भी है, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम भी है। तो विश्वविद्यालय इस बात की गंभीर चिंता करता है। और मैंने किसी से कहा कि ईश्वर की इच्छा हुई तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये है कि हम अपना फैकल्टी सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से शुरू करें। इससे ज़्यादा डिप्राइवेशन किसी डिपार्टमेंट में नहीं है फैकल्टी का। मतलब एक तरह से ये इफ आई एम अलाउड टू यूज द वर्ड, ये अमानवीय है उन टीचर्स पे कि वो अगर 12 टीचर रेगुलर टीचर 36 रेगुलर टीचर का काम करेंगे तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो फिर हमारा इंस्टीट्यूशनल गोल डिफीट होता है। हमको ये नहीं होने दे रहे हैं। और ये वही डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है जिसने वो सैनिटाइजर बनाया, जिसने इस लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में 100 साल में पहली बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट कराया। So there is every responsibility lies on the shoulder of the university to reciprocate, and ये reciprocation is not in the interest of only the department but in the interest of the students who come for superior learning to this great seat of learning. तो ये हमारा नैतिक धर्म भी है कि of course there are certain resource constraints that you all are aware of, probably many of you are aware of much better than me. But we are trying to find out certain solutions to that, और बहुत सारा उसमें हम लोगों को मदद भी मिल रही है, सफलता भी मिल रही है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 4-5 सालों के अंदर जब चीज़ें कंप्लीट मैच्योरिटी ले लेंगी तो शायद वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट जिसके तहत हमारी रिसर्चेज उतनी प्रोग्रेस, मतलब इस मेरिट पे अगर संसाधन से मैप करा दें इसको तो हमारा रिसर्च आउटपुट कहाँ से कहाँ जाए जिसके ईजिली भी था। और ये एकदम अनफेयर है ऑन पार्ट ऑफ द मेरिट एंड विजडम ऑफ आवर टीचर्स नॉट टू मैच द रिसोर्स एंड द आउटपुट दैट दे ट्रूली डिजर्व एंड दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग इट। तो मुझे लगता है कि एक सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस क्रिएशन, इंफॉर्मेशन प्रोपेगेशन, इन सभी चीज़ों के लिए दिस साइंस फेस्टिवल विल गो अ लॉन्ग वे। इसका प्रोफेसर विभूति राय साहब वैसे भी बहुत मेटिकुलस हैं अपने अप्रोच में और काम में, तो इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कराएंगे। इसमें कुछ बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका प्री कमिंग लर्निंग एंड पोस्ट विजिट लर्निंग का एक असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स का एक अपना रिस्पांस हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन सा डिपार्टमेंट का काम कितना रिसीव्ड है, स्पेशली अमंग दी स्टूडेंट्स। तो आई बिलीव
this was one thing which was extremely novel and that added enormous glory and the grandeur of our centennial celebration. So that way, ये साइंस फेस्टिवल जैसे स्पोर्ट्स आज सुबह हमारे यहाँ योग शुरू हुआ विश्वविद्यालय में, उसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हुआ जिसमें पुराने स्टूडेंट्स भी आए और हमारे इनकम्बेंट इस समय के बच्चे भी थे। इन दोनों के बीच में एक मैच हुआ, बल्कि 2 मैचेस हुए मुझे लगता है, पहले बास्केटबॉल हुआ फिर वॉलीबॉल हुआ। ऐसे ये लगातार चलता रहेगा। इसी तरह से ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का प्रोग्राम हैज़ बिगन एंड आई बिलीव दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन द हिस्ट्री ऑफ द फैकल्टी ऑफ साइंस। सो एक और बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें दिखती है वो ये है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ हेजिमनी दैट वी आर ऑब्जर्विंग हियर। हर विभाग के लोग इसमें अपना सहभागिता कर रहे हैं और उस सहभागिता से जो गोल है फर्दरेंस ऑफ साइंस नॉलेज उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आई विश ऑल द लक एंड आई डिक्लेयर दिस साइंस फेस्टिवल ओपन टू यू ऑल। थैंक यू।